Welcome students again. Now we are doing this is worksheet number 33, subject science, class 10th, dated 18 September 2020. तो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें लास्ट इससे पहले वाली वर्कशीट का जो वीडियो बनाया गया है उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने देखा है। उसमें मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक ये आपका चैप्टर 3 है क्लास 10 में। चैप्टर 3 10th क्लास का बोर्ड का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मेनली आफ्टर जब सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया तो कुछ चैप्टर हटा दिए क्योंकि बाकी चैप्टर्स की वेटेज आपकी बढ़ जाती है। दूसरा आपका मेटल एंड नॉन मेटल में भी काफ़ी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, तो जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं क्योंकि 2020-21 का सिलेबस CBSE ने रिड्यूस किया है। कुछ चैप्टर ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट रखे हैं जो एक्सटर्नल में नहीं आएंगे, कुछ चैप्टर बिल्कुल हटा दिए गए हैं क्योंकि आपकी जो रिज़ल्ट्स और ये सब लेट हुआ था तो इसलिए CBSE ने टाइम फ्रेम को देखते हुए कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। वो आपके मैंने इससे पहले भी इसी चैनल पे जिस पे आप ये लिंक देख रहे हो, जिस पर आप यू आर वॉचिंग द वीडियो and the link from which you have access to this video also contains many videos of the worksheets earlier I have shared with you. There is also a video on the syllabus, deleted portions, reduced portions of 9th and 10th. You can watch them for your syllabus queries. So let us start with metal and non-metal, which is a important chapter of our science class. It is also very important for general science and also very important for higher classes, and you should know the general things also. So metal and non-metal, in previous video we mainly discussed physical properties of metals like malleability, ductility, etc. You can watch in the previous video. So now we are starting with reaction of metals, and also in the previous video we have discussed chemical reaction of metals with oxygen, that is air, mainly there is oxygen, and amphoteric oxide we have discussed, very important topic. And we have also discussed the reaction of metals with water, that are many metals show vigorous reaction with cold water, then we come to hot water, then we come to steam, and some metals which do not react with water at all. Now we'll be studying the reaction of metals with acids. Important things here are reaction of metals with acid, the reactivity series, also known as activity series of metals. It is also there in this worksheet. So let us start with the reaction of metals with acids. As you all know, from the previous chapters you can see, we are talking here about mainly mineral acids. So acids have a unique property that they contain H plus ions, that you all know from the chapter 2, acid, bases and salts. We have studied what are acids which release H plus ions chemically. Chemically, acids are those which can release H plus ions when disassociated in their solutions, and pH number etc. we have studied. You can see earlier videos and worksheets. So basically the acids contain hydrogen. So we are studying that metals, what will they do if they are, can they replace the hydrogen from the acids, or can they not replace, or they can't? क्या मेटल्स रिप्लेस कर सकते हैं? मेटल्स आपको समझ आ गया होगा मेटल कौन से होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसकी पीछे, आप और भी देख सकते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेटल्स कौन से हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं। तो मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्शन एसिड्स के साथ बेसिकली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसिड्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, तो जो मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो अगर मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से तो वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बेसिकली ये बात हुई इसकी, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ये मेटल रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। ये आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने ये पढ़ा है कि डिस्प्लेस कर देते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उसमें भी हमने ये
तब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बोला था कि आप मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में एक्टिविटी सीरीज़ को देखिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं। वो रिएक्शन से ही पता लगता है आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। अब हाइड्रोजन को हम क्यों लेते हैं कि हाइड्रोजन वाइडली बहुत चीज़ों में हाइड्रोजन पाया जाता है। हम एसिड देखेंगे तो एसिड हाइड्रोजन आयंस से ही बनते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन होती है। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट क्या होता है एसिड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपने सेकंड चैप्टर का आपका टॉपिक है कि एसिड्स को डाइल्यूट करना। एसिड्स को डाइल्यूट हम करते हैं तो उसमें हम एसिड में वाटर नहीं डालते। आपने पढ़ा होगा कि हम वाटर में एसिड डालते हैं। ये भी आप रीजनिंग इस कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझना है। तो हम हमेशा वाटर में ड्रॉप करके एसिड डालते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए। मींस एसिड को हम पतला, जैसे हम दूध को पतला करते हैं, ऐसी एसिड की इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन तो उतनी रहेंगी एसिड में, और हम उसमें वाटर में ऐड करते जा रहे हैं तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। जैसे किसी गाढ़ी चीज़ को पतला करते हैं, ऐसे इसमें हाइड्रोजन आयन से एसिड की स्ट्रेंथ कहाँ से पता लगती है, हाइड्रोजन आयन से। तो जितनी हाइड्रोजन आयन कम होती जाएंगी दूसरी चीज़ बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन आयन उसमें कम होगी, उतना उसका पावर कम होती जाएगी एसिड की, उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं हम। मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट का मतलब यहाँ होता है जो भी मेटल है उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट, उसी का रिस्पेक्टिव सॉल्ट आपके पास खाने वाला नमक जो सॉल्ट हम बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट खाली ये नहीं है, दिस इज़ कॉमन सॉल्ट NaCl। बट जो भी आप मेटल ले रहे हो, जो भी उसमें साथ में दूसरा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे वो मिलके बनेगा, दैट इज़ सॉल्ट। अभी हम समझाएंगे विद एग्जांपल्स। मैं अभी इसलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना चाहता हूँ। सीधा आंसर्स पे जंप करना या सीधा आपको रिएक्शंस रटा देना वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि उससे आप फिर आगे चीज़ें नहीं कर पाओगे अपने आप। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये बेसिक है। जैसे सोडियम मेटल आपने देखा बहुत रिएक्टिव है, पीछे भी रिएक्शंस देखी सोडियम मेटल की। सोडियम प्लस एसिड हम ईजी वाला ले लो, चाहे H2SO4 ले लो, चाहे HCl ले लो, चाहे HNO3 ले लो आप। तो मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स, यहाँ आपको लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड, क्योंकि ये डाइल्यूट लिया है हमने, इसको डाइल्यूट किया हुआ है वाटर मिक्स करके। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम S, ये आपको अभी तक पता होगा। फर्स्ट चैप्टर आपने रिएक्शंस नहीं तो आप फर्स्ट चैप्टर फिर ध्यान से देखिए वीडियो केमिकल रिएक्शंस का। तो केमिकल रिएक्शंस में आपने बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन में देख लिया होगा। S मीन सॉलिड, सोडियम सॉलिड है। मेटल जनरली आपको बताया था कि सॉलिड्स होते हैं, एक को छोड़ के जो लिक्विड है वो आप कमेंट में बताएं लिक्विड मेटल कौन सा है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। डाइल्यूट का मतलब है डाइल्यूट किया हुआ है, इसको इसमें मिक्स करके। HCl जब रिएक्शन कर रहा है तो ये बन रहा है NaCl एंड H2। बेसिकली रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ अपना बना रहा है कंपाउंड और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो ये होता है NaCl बन गया, यही आपकी रिएक्शन है, प्लस H2। अब जो H2 है ये, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में रहता नहीं है, रिएक्टिव है, तो ये डबल फॉर्म में दिखा दिया। फिर आपने इसको बैलेंस किया है, रिएक्शन को बैलेंस किया है, तो जब H यहाँ 2 है, ये 1 है, यहाँ 2 है, तो बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ 2 आ गया। जब यहाँ 2 आ गया तो आपके पास क्लोरीन 2 हो गए, Cl क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन एक ही है इस साइड पूरे इसमें, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया। तो अब सोडियम 2 हो गए तो सोडियम के आगे 2 लगा दिया, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अगर आप देखें इसमें तो ये दिस इज़ ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। और ये आपका हम रिएक्शन अब कर रहे हैं कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो मेटल, सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव मेटल, मोस्ट वेरी रिएक्टिव मेटल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अपना सॉल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम कॉमन सॉल्ट वाला नमक बन गया इसमें, प्लस हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी। तो आपको याद रखना है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपने इसमें एसिड एंड बेसिस फर्स्ट सेकंड चैप्टर का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। अब हम पढ़ रहे हैं उसी को उल्टा में, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और अपना सॉल्ट बना लेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। हेयर हाइड्रोजन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय सोडियम विच इज़ highly reactive, so it displaces hydrogen from hydrochloric acid and forms sodium chloride plus water. Similarly, you can take another metal. You can take many examples which are more reactive than hydrogen. You can also practice from, I will show you the reactivity series. From that you can practice how these metals react with acids. Then we take Zn.
zinc plus HCl, hydrochloric acid, same acid. Now zinc is also more reactive than hydrogen. How do we know? Because it forms its own salt. How we know that reaction has taken place? That is also in all chapters are connected. That is also in first chapter we have studied. By release of heat, by change of color, we can know that reaction has taken place. If reaction is taking place and we know ZnCl2 color, its color, so we can easily frame out that zinc has replaced hydrogen from HCl, from hydrochloric acid, to form zinc chloride plus hydrogen. So it also liberate hydrogen gas. Arrow above arrow we can put, if you have seen the first chapter, gas can be shown by the up arrow, arrow showing upward movement. Gaseous, this will be aqueous solution because water will be there, so the salt will be in water, so zinc chloride in water, so aqueous solution. Your HCl will be dilute HCl, and zinc is a metal, solid metal. It is found on coverings of pipes. Iron pipes are covered with zinc, and many places you can find zinc. So now you have studied the basic, that metals react with acids to form metal chlorides, metal salts. They are salts. It can be chloride, it can be sulfate. You can practice by writing many reactions and show them in my comments. Then there is a metal copper. You have seen many times in earlier videos that copper does not react with water, copper does not react with this. So copper is less reactive metal. The symbol of copper is Cu, taken from cuprum. So it does not react with dilute HCl. We are not saying concentrated, we are saying dilute HCl. Copper does not react. Why? There will be no reaction. You don't have always to write that it will be CuCl2. No, it will not react with HCl, because we will come to the reason, because copper is less reactive than hydrogen when we will see the activity series in the next part of the video. So here you have to remember that copper does not react with HCl, dilute HCl, so it is less reactive than hydrogen. So here we are seeing the colors of solutions. When we put in magnesium, the color changes. In zinc, we are seeing the color is changing and the metal is being consumed because it is going into the solution. We have put it into HCl, different metals. When we put copper in HCl, there is no change. The copper is as it is. Copper, तांबा जो आप देखते हैं वो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया. देखो यहाँ जिंक मेटल आपका उसमें मिक्स होना शुरू हो गया सोल्यूशन में, मैग्नीशियम भी मिक्स हो गया, पर जिंक इस कॉपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. इसका मतलब कॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा. सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के साथ एक है, आपने एसिड्स में देखा कि हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 जिसको बोलते हैं हम, दिस इज नाइट्रेट आयन. तो नाइट्रेट आयन से जो बना है नाइट्रिक एसिड H+NO3- से, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती मेटल जब इससे रिएक्ट करते हैं. ई रिस्पेक्टिव ये नहीं कि वो हाई इससे कम रिएक्टिव हों, ज़्यादा रिएक्टिव हों हाइड्रोजन से. कोई भी मेटल है जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व हो रही बाहर आ रही. इट इज़ बिकॉज, कई बार पूछा जाता है, तो HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जो हाइड्रोजन गैस बनी, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैं एक वीडियो डालूंगा, इसमें आप देख सकते हैं उसको. कई बच्चों का डिमांड है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में समझ नहीं आता, तो समझा देंगे. सिंपल बात, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट चैप्टर में. तो H2 जो बना है हाइड्रोजन, वो ऐसे ही नहीं रहेगा जो बनता है उसमें मेटल प्लस एसिड में. अगर वहाँ HNO3 वाला एसिड यूज़ करेंगे, नाइट्रिक एसिड है, तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? वाटर. और ये खुद अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा या नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा. इस तरह से NO2 बना लेगा, NO3 की बजाय N2O बन जाएगा या NO. ये NO3 नहीं रहेगा. तो इसकी हम एग्जांपल अगर आपको दिखाना चाहें कि कैसे, हाँ, लेकिन ये अगर स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन बहुत डाइल्यूट करने पे, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने पे, अगर HNO3 में बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया जाए और उसमें डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दें, इसको बिल्कुल पतला कर दें, तब वो रिएक्शन, तब हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकता है. नहीं तो वो वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है उसको. जैसे मैग्नीशियम, ये है आपका मैग्नीशियम, आप देख रहे होंगे इसमें मैग्नीशियम प्लस
नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट, जब वेरी डाइल्यूट इसको करते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए कर देगा, हाइड्रोजन को वाटर बना देगा, जो हाइड्रोजन उसमें बनेगी रिएक्शन में इसको क्या बना देगा, वाटर बना देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। जब एक सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होता है, रिड्यूस, या आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर Mg और HNO3 नॉर्मल हो, अगर वो डिल्यूट ना करें इसको, HNO3 को बहुत ज़्यादा डिल्यूट ना करें, तो ये आपका बन जाएगा या तो MgNO2 बनेगा प्लस H2O। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2O N2O बनेगा, या ऐसे इस तरह से H2O निकलेगा, H2 नहीं निकलेगा अगर HNO3, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस हाइड्रोजन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन ये वाली रिएक्शन कहाँ से आई जो आपको भी दिखा रखे हैं नीचे, फिर यहाँ पे हमने HNO3 को बहुत ज़्यादा डिल्यूट किया है। बहुत ज़्यादा डिल्यूट करने पे ये नॉर्मल मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीज, Mn मीन्स मैग्नीज, Mg मीन्स मैग्नीशियम सिंबल, ये हो गया मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्वस क्यों है, क्योंकि डिल्यूट है, वाटर में सोल्यूशन है, तो उसको एक्वस लिखते हैं हम। AQ मतलब एक्वस, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर जी नहीं लिखना तो एरो भी दिखा सकते हैं कि ऊपर की तरफ उड़ जाती है गैस। तो और हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक आपने पहले पढ़ा है, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, वैसे कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं वीडियो में। अब आपके पास है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। वो तो हमने एसिड के साथ पढ़ा, अगर एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को तो बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो डिपेंड करता है कि अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। मेटल A इज़ मोर रिएक्टिव देन मेटल B, देन इट विल रिप्लेस मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड विल फॉर्म इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन। उसके लिए हम बहुत ही एक कॉमन सी रिएक्शन करके देखते हैं जनरली लैब में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लेते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये जो ब्लू कलर किसका है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, कॉपर सल्फेट। इसका कलर होता है पानी में, जब इसको मिक्स करते हैं, ये सॉलिड है, इसको पानी में मिक्स करें, कलर कौन सा होगा, ब्लू। एक्वस सोल्यूशन जब इसका लेंगे तो जब इसमें हम आयरन नेल डालते हैं, ये क्या ले ली है, आयरन की नेल, लोहे की एक कील, चाहे लोहे की कील के बजाय हम आयरन का फिलिंग्स भी आती हैं। आयरन फिलिंग्स का मतलब है लोहे की छीलन टाइप, जो लोहे के छोटे 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 टुकड़े होंगे, छीले हुए बिल्कुल लोहा आयरन। तो ये हमने क्या किया, इसमें थ्रेड क्यों लगाया है, ताकि नेल उसमें आपको दिखती रहे। ये थ्रेड लगाया है, नेल लगी हुई है उसके साथ, या आप इसमें आयरन की फिलिंग्स डाल सकते हैं। ऊपर यहाँ कॉर्क डाला हुआ है, और ये ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का जिसमें हमने आयरन नेल अभी डाली थी। इसको हम गर्म करके भी कर सकते हैं, या कुछ टाइम के लिए इसको रख देंगे। कुछ टाइम के लिए रखने के बाद देखो ये इसका कलर उड़ गया, कलर गायब हो गया जो सोल्यूशन का था, और ये जो आयरन नेल थी इसके ये कलर देखो इसका कॉपर जैसा कलर हो गया, बिल्कुल जैसे कॉपर का कलर होता है, ब्राउनिश सा, रेडिश ब्राउन, वो कलर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भी थोड़ा सा, हाँ अब देखिए और ध्यान से आपको दिख रहा होगा। तो अब देखिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि कॉपर को आयरन ने उसके सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से हटा दिया, और ये जो नेल थी आयरन की, इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो गई है। और ये कलर किसका आया है, जो जहाँ पे क्रीम कलर बना है, ये किसका है, आयरन सल्फेट का कलर है। तो बेसिकली रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन आपके लिए नई नहीं है, आपने बहुत बार पढ़ी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में आ जाता है कि ब्लू कलर है वो कहाँ गया, ब्लू कलर का कलरलेस बन गया, बताइए कौन सी रिएक्शन है। तो कॉपर सल्फेट एक्वस, जिसमें हमने आयरन डाला था, दिस इज़ मेटल ए, जो हमने पढ़ा मेटल ए और मेटल बी का क्या होगा, ये है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, दैट इज़ कॉपर, हेयर कॉपर इज़ मेटल बी। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, जब उसमें आयरन डाला, हमने आयरन नेल डाल के एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो ये बन गया आयरन सल्फेट। आपको कैसे पता आयरन सल्फेट बना है, बिकॉज जो कलर है वो किसका बन गया, वो आयरन सल्फेट का कलर आया है इसमें, प्लस कॉपर, कॉपर कहाँ आ गया, वो जो नेल थी उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो कॉपर सोल्यूशन में से बाहर चला गया, उसको डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने उसके सोल्यूशन से। तो ये आयरन सल्फेट आपको समझ आ गया। तो यही रिएक्शन है आपकी, जो हम इसका जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं। मेटल ए, जो मेटल ए हमने यहाँ पे मेटल ए का मीनिंग है, यहाँ आयरन है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, यहाँ कॉपर का सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ कॉपर है, कॉपर सल्फेट। अब क्या हो गया, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसने इसको कॉपर को यहाँ से हटा दिया और ख़ुद अपना आयरन सल्फेट यहाँ पे बना लिया।
तो सॉल्ट का सोल्यूशन ऑफ ए बन गया। अब ये आयरन सल्फेट ए का, ये ए है मेटल, उसका सोल्यूशन है, और कॉपर वहाँ से बाहर हो गया। सिमिलरली कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर से, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से यहाँ मेटल बी सिल्वर है और मेटल ए कॉपर है। अब मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव मेटल बी को वहाँ से हटा के अपना सोल्यूशन बना लिया कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ 2 क्यों नहीं है, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि यहाँ 2 आना चाहिए, और 2 लिखना शायद रह गया इनका, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी भी 2 आएगी यहाँ पे। तो कॉपर नाइट्रेट में CuNO3 ट्वाइस, ब्रैकेट इसलिए लगाई है, ट्वाइस आएगा, तो इसको करेक्ट कर लें आप। तो ये ये आप बैलेंस कर लेंगे आगे। तो सिल्वर मेटल को कॉपर रिप्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये आगे हम वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे, जहाँ हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि कलरलेस सोल्यूशन, जो ये वाला कलर है ग्रीनिश, ये आयरन सल्फेट का है, जो ये ब्लू कलर है ये कॉपर सल्फेट का है। तो कलर चेंज से हमें यहाँ पता लग रहा है। और ऐसी आयरन नेल, आपको पता है आयरन की नेल, लोहे की कील कैसी होती है, थोड़ी ब्लैक ग्रे कलर की, और जबकि कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब कॉपर बाहर आ गया है। ये आपकी रिएक्शन है इसमें जो दिखाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमेशा याद रखें इसको, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, फिर लिख लें अपने उसमें बुक में, अपनी कॉपी में लिख के रख लें। तो इसी तरह हम अलग अलग मेटल्स की रिएक्शन करा के कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे हम इनको अरेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, या एक्टिविटी सीरीज भी इसी को बोलते हैं। एक्टिविटी कितनी है, कितना रिएक्टिव है, तो इसमें आपको याद रखने लायक है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो हमने थोड़ी सी सीरीज़ बनाई है, मेटल बहुत सारे हैं, छोटी एक सीरीज़ बनाई है जो मेनली हम देखते हैं उनमें। तो सबसे रिएक्टिव इसमें पोटाशियम, सोडियम, इसका मतलब पोटाशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को, कैल्शियम मैग्नीशियम को, पोटाशियम इन तीनों सबको कर सकता है रिप्लेस। सोडियम जो है वो अपने नीचे वालों को रिप्लेस कर सकता है, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और ऊपर वालों से कम रिएक्टिव है। तो इस तरह से दिखाए हैं मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, इस तरह से सीरीज़ ऊपर से नीचे ये चल रही है। तो आप देखिए पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम रिएक्टिव, आयरन उससे कम, लेड उससे भी कम। फिर आता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आपका एक बेंचमार्क है, क्यों एसिड्स के लिए। जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे वो ये वाले होंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं। जो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। हाइड्रोजन को आप एक बेंचमार्क लेके चलिए इसमें आपके लिए, जब आपको एसिड्स की रिएक्शन देखनी है तो आपका जो हाइड्रोजन है इसमें, वो आपका हाइड्रोजन जो है वो बेंचमार्क होगा। ये हाइड्रोजन आपका एक बेंचमार्क है। उससे ऊपर वाले होंगे मेटल्स, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ वो रिप्लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नीचे वाले जो मेटल हैं ये वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं कर सकते, और ये एसिड के साथ भी नॉर्मली रिएक्शन नहीं करेंगे। लीस्ट रिएक्टिव मेटल गोल्ड है इसमें। तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, जनरली किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए गोल्ड एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसकी चमक कहीं नहीं जाती, क्योंकि मेटल्स में चमक होती है, आपको पता है अपनी। सिल्वर है, ये भी जनरली रिएक्ट नहीं करता, बहुत कम रिएक्शन करता है। मरकरी भी कम रिएक्टिव है। कॉपर भी कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन अगर वो वाटर और इन चीज़ों से एसिड के साथ रिएक्शन नॉर्मली नहीं करता। तो आप समझ गए होंगे रिएक्टिविटी सीरीज। सोडियम पोटाशियम मोस्ट रिएक्टिव, गोल्ड एंड सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव। आपने जनरली, क्योंकि पीछे जितनी भी रिएक्शंस देखी उसमें मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर रिएक्शन नहीं करते थे, हमने देखा। और ऐसी ऊपर सोडियम पोटाशियम फटाफट रिएक्शन करते थे। जब हमने पढ़ा था कि उनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि आप उसमें ध्यान से देखें वीडियो और कमेंट करें कि इनको केरोसिन ऑयल में रखने से ये क्यों नहीं जलते, कैसे बच जाते हैं बर्न होने से। अगर एयर में रखेंगे तो ये बर्न हो जाते हैं, एकदम से आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर ईजिली। कैल्शियम भी आपने देखा था पीछे में कैसे वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये आप देख सकते हैं कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन से कम। आयरन जैसे है, आयरन इन सबसे कम रिएक्टिव है, तो इनको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन कॉपर को आराम से रिप्लेस कर देगा, लेड को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन के साथ मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो दिस इज़ रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको आप याद कर लें, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइल मेटल्स फ्रॉम, अब हमारे पास थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है पर देखना है, आप देख लीजिए फिर भी। वाइल मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू लेड कैन रिएक्ट विद एसिड्स। मैग्नीशियम से लेके, आपने पीछे देखा, मैग्नीशियम से लेके लेड तक जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए इसमें मैग्नीशियम से लेके लेड तक, ये है ना हाइड्रोजन से ऊपर है, आपको बताया था ये। तो मेटल्स फ्रॉम कॉपर एंड गोल्ड आर हाईली अनरिएक्टिव, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, देखिए ये हाइड्रोजन से नीचे हैं। कॉपर से लेके गोल्ड तक जो मेटल्स हैं वो हाईली अनरिएक्टिव हैं, जितना नीचे जाएंगे उतना रिएक्शन। तो नॉर्मल कंडीशंस में हीट ना हो या वैसे
उनको गर्म ना किया जाए, कोई सोल्यूशन में ऐसे में न डाला जाए तो वो रिएक्शंस नहीं करते। दिस इज़ द रीज़न वाई मेटल्स लाइक गोल्ड डोंट गेट करोड ईजिली। इसलिए आप सोने के गहने पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन आप देखते हैं सोने के गहने चलते हैं गोल्ड के, तो जल्दी, क्योंकि उसमें क्रोजन लगता ही नहीं है। एंड डोंट फॉर्म ऑक्साइड्स, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हवा में जैसे बाहर भाई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होगी तब तो वो कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ये मेटल्स रिएक्शन नहीं करते। गोल्ड तो बिल्कुल ही हाईली अनरिएक्टिव है, सालों साल अगर एयर में पड़ा रहे तो भी ऑक्सीजन से उससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आप आयरन रख दो, लोहा रख दो, देखो आप उसमें जंग लगती है, रस्टिंग आपने पढ़ी है पहले। वाइल मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे ऑक्साइड बना लेते हैं जल्दी से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने देखा ऊपर के ऊपर जो डल सरफेस होती है उसकी चमक चली जाती है, जल्दी से ये ऑक्साइड बनाने के लिए तैयार रहते हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, फिर भी इसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्यों रखा है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कंपैरिजन में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्योंकि जनरली हाइड्रोजन से हम चीज़ें देखते हैं, एसिड्स भी में हाइड्रोजन है, वाटर में भी हाइड्रोजन है, तो उसी से हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं कि कौन रिएक्ट करता है कौन नहीं। इसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट में, जो मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आपको सेकंड पार्ट भी, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास एक लिंक है यूट्यूब पे, आपको ये इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें आप, जिस लिंक से अभी आए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस लिंक पे हैं जो आप जिस लिंक से आप ये देख रहे हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। एक बटन होता है उसमें सब्सक्राइब का, रेड कलर का ऐसे लिखा होगा, जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसमें सब्सक्राइब कर लें। और एक बेल आइकॉन होगा आपके पास, ऐसे बेल बनी होगी जिसमें ऐसे घंटी बनी होगी, उस घंटी को आप क्लिक कर देंगे तो जब भी वीडियो डलेगा आपको उसी टाइम नोटिफाई हो जाएगा, ताकि आप देख पाएँ। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, शेयर करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है, कम नहीं होती। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा, जितने लोगों को ज़्यादा समझ आएगा, जितना आपस में मिलके चलोगे, शेयर करोगे, उतना ही आपकी नॉलेज जो ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को भी काफ़ी चीज़ें नॉलेज में आ रही हैं कि कैसे वीडियो बनाना चाहिए, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन आंसर, एक बच्चा था जो इस वीडियो पिछले लास्ट वीडियो में उसने बोला कि सर प्लीज़ गिव द क्वेश्चन आंसर फॉर्म, तो उसकी बात सुनते हुए, वर्णवाल जी हैं हमारे, तो उनकी बात सुनते हुए हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में इस जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के, इनके मैं आंसर्स आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा।